Hello my lovely souls, welcome to my channel. Today we are going to see how protective your future spouse will be towards you. It's a general reading, so take only those messages which resonates with you and leave the rest. Like as always, we have two groups, group number 1 and group number 2. Choose according to your wish and I will meet you at group number 1. Hello group number 1, today we are going to see how much protective your future spouse will be towards you. So we have 10 of Pentacles, King of Swords, the Wheel of Fortune, Courage card, Adventure, Death card, Ace of Wands, and lastly the Hermit card. Your future spouse will be fiercely protective towards you. They will always want to see you as safe. Financially, they will make sure that you could have all the luxury you desired in your life, so that you never have to worry about money. He or she is going to give you a happy life family. With King of Swords, I feel like your future spouse will not show their emotions openly. They believe in actions rather than words. So, when it comes to your safety, your person will be very serious. Like a true king protects his subjects and territory, your future spouse will be truly your true protector. He or she will respect you and will never tolerate any disrespectful or rude comments or behavior for you. In a traditional way, when it talks about the Wheel of Fortune, this card concerns with beast. So here from my point of view, irrespective of your gender, you will literally like the beast beauty. If your future spouse sense any threat to you, then he or she will not hesitate to show their beastly side to protect you. No one should underestimate your person, because their bad side is not a side for the faint-hearted. With Courage card, when we talks about defending you, your future spouse will be very bold. No matter who is trying to harm you, your future other half will bravely stand up against the other person, so that you could always feel safe and protected, irrespective of any circumstance. To keep you safe, your person will go to any adventure like this small child from this card. As she walks from the darkness of the forest to the rainbow lights. In the same way, your future spouse will go to any extent unknown to them, but with trust and determination, and hope that they will protect you. With Death card, I am feeling like if someone intends to harm you or disturb your mental peace, your person will be the annihilator. Your person will be annihilator, destroying each and everyone who thought that they could cause you pain. Your hater will face their harsh fate. As this card is related with fire element, Ace of Wands. This red color, if you see this red color, you will know that red color generally symbolize fire signs. So here through this card I am feeling the zodiac sign or elements of fire in this card. So I'm sensing that in order to secure you, your future spouse will literally burn alive anything that could bring tear into your eyes. Here, suddenly I remember a line from a drama that, and the line is that I can endure anything in my life, but never see you cry. So it's like that. Your hubby or wifey wants to see you happy. And lastly, a Hermit card. With Hermit card, your future spouse will be very cautious in matter with your safety. With an owl image, if you see this card, you will see there is an owl sitting on a tree. So I feel like I can sense that your future spouse will be intuitive. They will trust their gut feeling and will know when something is bothering you. When you have something in your mind, your person can sense that and will ask directly about you. So be truthful to them. In that way, they can help you. And lastly, we are going to see some charms. So those charms could be your message from the universe or your future spouse. So for this group, I got the elephant. If you see this elephant, so your future spouse will be like an elephant, always brave to protect you. And then we have the music. So maybe you or your future spouse love to hear songs or love to listen music. With this symbol, with this cross symbol, I feel like God Jesus Christ will always bless you and protect this relationship from bad eyes. And lastly, we have his guitar. So maybe you love to play guitar, or maybe your future spouse will sing some song with playing guitar for you. So that was for today. If you like this video, don't forget to like, share and subscribe to my channel, and I will meet you in my next video. Till then, bye bye. Hello group number 2. Today we are going to see how much protective your future spouse will be towards you. So we have Knight of Pentacles, 10 of Cups, Integration card, Knight of Swords, 9 of Swords,
and the Lovers card. So you will get a very responsible person as your future spouse. He or she will take any risk when it comes to your safety. They will accept you as their number one priority. Your person is someone who will take their marriage oath of protecting you wholeheartedly. No one can change their protection. No one can change their protective feeling towards you. With Ten of Cups, as Ten of Cups related to group activities, here I am feeling that your person believes you two are a strong group which no one can break. For them, you are their bestie, and both of you got each other's at their back. They want to keep you safe, and they want to keep you safe by their side. They are someone who wants emotional stability and domestic peace in their life. Your future spouse feel like the universe has sent you as a gift in their life to protect and cherish. So no one can play with you or hurt you and get unnoticed. If your future spouse feels someone is trying to hurt you, he or she will use each and every resources they have to save you. Physically and emotionally, your person is very strong to protect both of you, and financially also, they are capable enough to guard you. With Intuition card, through this card, I sense that to protect you, your future spouse will bring heaven and earth together. There is a possibility that you and your future spouse could be water sign or fire sign. Your future spouse could have eagle as their spirit. If you see this card, you will see the image of an eagle. So maybe eagle could be their spirit animal. I'm sensing like that. As eagle is effective at surprising and overwhelming their prey, exactly in the same way, your person's sudden action can surprise anyone. Like the eagle, they will be fearless at defending you. Other quality of an eagle, if you know, other quality of an eagle is that they have a very powerful vision. They can see and sense their prey from far away. When you will mentally disturb or feel fear or angry, your hubby or wife can feel those emotions and will be alert like the eagle to protect their other half. So it's like that. They will be very protective of you. In this card, we have many animals images. So if you see this card, you will see a swan. So here I am feeling like this card. With this one, I am feeling. For me, it's like your future spouse will not think twice to separate you from people who pretends to be your well-wisher, but they are actually a backstabber, like the swan who can separate milk from the water. Other animal spirits we have in this card is snake. So for some of my viewers, your future spouse will be as secretive as like a snake when they needs to protect you, so that no one will be aware about it. Here we have Knight of Swords. So when it comes to protect you, when it comes to protect the love of their life and their future family, your other half will take action as fast as they could, because in their heart they will take the responsibility to protect and love you. With your future spouse, is like someone, if any situation is bothering you, then they will not. I feel like your future spouse is someone, if any situation is bothering them, they will not take any rest until and unless they solve the issue. It goes the same way when it comes to take care. When he or she needs to take care of you, your person will stand up against anyone who will try to harm or insult you through their words or like that. Like a true lover, your person will make you feel safe. And if anyone dares to disturb their family happiness or peace, your hubby or wife will make sure that the other person will have sleepless night. Now we are going to see some charms. So this charms could be indicated that your future spouse sends some messages for you, or could be this could be a message from universe. So the first charm I got for this group is the rose. So maybe your future, after your marriage, your future spouse will give you lots of rose, or love to surprise you with lots of roses. And with the owl image, we have I somewhere got. With an owl image, I feel like your future spouse will be very intuitive. So when something is bothering you, or someone going like they feel like someone is bothering you or try to harm you, they will take action immediately. And another one we have is cage with a bird in it. So if you see this cage with a bird, so I'm feeling like when you will meet your future spouse, it will be like they will bring you out from this cage like situation. Or maybe rightly, if you are feeling like caged or trapped, then there's a message from universe that you will be overcome from that trapped situation. And lastly, we have this love symbol. So your future spouse is sending you lots and lots of love for you from their side. So that was for today. If you like this video, don't forget to like, share and subscribe to my channel, and I will meet you in my next video. Till then, bye bye.
हेलो माय लवली सोल्स, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम देखेंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपको लेके कितना प्रोटेक्टिव महसूस करते हैं। तो हमारे पास दो ग्रुप है, ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2। आप अपना इंट्यूशन यूज़ करके कोई भी एक ग्रुप चूज़ कर सकते हैं और साथ ही साथ ये एक जनरल रीडिंग भी है। तो आप वही मैसेजेस ले जो आपके साथ रिजोनेट करते हो और मैं आपको ग्रुप नंबर 1 में मिलती हूँ। हेलो ग्रुप नंबर 1, आज हम देखेंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपको लेके कितने प्रोटेक्टिव है। सो हमारे पास है 10 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ स्वर्ड्स, द व्हील ऑफ फॉर्चून, करेज कार्ड, एडवेंचर कार्ड, डेथ कार्ड, एस ऑफ वंस एंड लास्टली द हर्मिट कार्ड। सो यहाँ पे आपके फ्यूचर स्पाउस आपको लेके बहुत प्रोटेक्टिव हो रहे हैं। मुझे यहाँ पे वो फियर्सली प्रोटेक्टिव लग रहा है। और आपके फ्यूचर स्पाउस हमेशा आपको सेफ देखना पसंद करते हैं। वो चाहते हैं कि वो आप हमेशा सेफ रहो और फाइनेंशियली मतलब वो हमेशा फाइनेंशियली वो मेक श्योर करेंगे कि आपके पास आपके लाइफ में हर सब कुछ लग्जरी हो जो अपने लाइफ से आपने एक्सपेक्ट किया था, और ताकि आपको कभी फाइनेंशियली कभी आपको कोई वरी ना हो या फिर फाइनेंशियली आपको कभी सोचने की ज़रूरत ना हो। आपके पर्सन हमेशा आपको एक हैप्पी फैमिली प्रोवाइड करने के लिए ट्राई करेंगे। यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ मेरे व्यूअर्स के लिए आपके फ्यूचर्स पास ओपनली अपना इमोशंस शो नहीं करते। तो वो मतलब अपने जब बात अपने इमोशंस की शो करने की बात आती है तो अपने वो ज़्यादा बोलने से ज़्यादा वो अपने एक्शन में बिलीव करते हैं। अगर आप वो आपसे प्यार करते हैं, वो आप प्यार को अपने एक्शन के थ्रू आपको दिखाएंगे, ना कि अपने वर्ड्स के। वो ज़्यादा मतलब वर्ड्स से ज़्यादा एक्शन पर बिलीव करते हैं। और जहाँ तक आपकी सेफ्टी की बात आती है, आपके पर्सन आपकी सेफ्टी को बहुत सीरियसली लेने वाले हैं। और जैसे कि एक ट्रू किंग अपने सब्जेक्ट्स को या फिर एक अपनी प्रजा को या फिर अपनी टेरिटरी को जैसे प्रोटेक्ट करते हैं ना, आपके फ्यूचर्स पास आपके लिए एक ट्रू प्रोटेक्टर साबित होंगे। और वो आपको हमेशा रेस्पेक्ट करेंगे और आपके अगेंस्ट वो कोई डिसरेस्पेक्टफुल या फिर कोई रूड कमेंट आपके लिए वो कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और नेक्स्ट हमारे पास है व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड। तो ट्रेडिशनली ये व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड अब हमारे मतलब यहाँ पे बीस्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो मुझे यहाँ पे ये महसूस हो रहा है कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी आपके जेंडर की ना हो, आप मतलब लिटरली आप बीस्ट की ब्यूटी, ऐसा मुझे यहाँ पे वो वाइब्स यहाँ पे आ रहा है इस कार्ड से, व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड से। सो अगर आपके फ्यूचर स्पाउस आपके लिए कोई थ्रेट या फिर कोई आपके लिए कोई प्रॉब्लम या फिर कोई इशू आपके लिए सेंस करे ना, तो वो अपने बिस्ली साइड को दिखाने के लिए वो हेजिटेट नहीं करेंगे, और ताकि वो आपको प्रोटेक्ट कर सके। और आपके पर्सन को ना किसी इंसान को किसी को भी आपके पर्सन को अंडरस्टिमेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम आपके फ्यूचर स्पाउस के बैड साइड के बारे में भी बोले ना, तो ये एक आपके फ्यूचर स्पाउस के बैड साइड एक ऐसा साइड है जो मतलब कमज़ोर दिल वालों के लिए नहीं है। और नेक्स्ट हमारे पास है करेज कार्ड। सो अगर हम आपको डिफेंड करने के बारे में अगर बात करें, तो आपके फ्यूचर्स पास बहुत बोल्ड होंगे या फिर वो कहूँ कि बहुत हिम्मत वाले होंगे। वो बहुत हिम्मत के साथ आपको हमेशा डिफेंड करेंगे। और नो बेटा आपके कोई भी आपको हार्म करने की क्यों ना कोशिश करेंगे, आप कोई भी क्यों ना आपको तकलीफ देने की कोशिश करें, लेकिन आपके फ्यूचर्स पास हमेशा दूसरे इंसान के खिलाफ हमेशा खड़े रहेंगे डट के, हिम्मत के साथ, ताकि वो आपको हमेशा प्रोटेक्ट कर सके, आपको हमेशा सेफ दे सके, चाहे जो भी सर्कमस्टेंसेस उनके सामने आए। और एडवेंचर कार्ड के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको प्रोटेक्ट करने के लिए आपके फ्यूचर्स पास कोई भी एडवेंचर या फिर कोई भी जर्नी से गुजरने के लिए हमेशा रेडी रहेंगे। अगर आपको इस कार्ड में ये चाइल्ड दिखाई दे रहा है, तो इस चाइल्ड की तरह अगर आपको ये चाइल्ड दिखाई दे रहा है, तो वो जंगल से उन्हें मतलब आपको दिखाई देगा कि वो जंगल से जा रही है, मतलब रेनबो की तरह, लाइट की तरह। तो आपके फ्यूचर स्पाउस को अगर मतलब कोई भी आपके लिए कोई थ्रेट उन्हें महसूस हो, तो चाहे उन्हें पता ना हो वो कहाँ से आ रहे हैं, वो उस प्रॉब्लम के अंतर तक जाएंगे या फिर उस प्रॉब्लम के रूट तक जाएंगे, ताकि वो प्रॉब्लम आपके लाइफ से वो हटा सके, आपको प्रोटेक्ट कर सके। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। भले ही वो सिचुएशन उनके लिए कितना अनजाना क्यों ना हो, लेकिन उन्हें आप खुद पे ट्रस्ट होगा, आपके प्यार पे ट्रस्ट होगा और डिटर्मिनेशन होगा, ताकि वो आपको प्रोटेक्ट कर सके। और डेथ कार्ड के साथ मुझे यहाँ पे ये लग रहा है, अगर कोई आपको मतलब कोई इंटेंट करे कि आपको हर्ट करने की या फिर आपको आपके मेंटल पीस को अगर डिस्टर्ब करने की अगर कोई मतलब ट्राई करें ना, आपके फ्यूचर्स पास मतलब उस लिटरली उन सभी चीज़ों को जो आपको तकलीफ दे रही है या फिर उस सभी लोगों को मतलब लिटरली सब कुछ डिस्ट्रॉय करेंगे, ताकि वो आपको प्रोटेक्ट कर सके, ताकि कोई हार्म आपकी तरफ आ ना सके। अगर किसी ने आपको तकलीफ देने की कोशिश की भी, तो आपके फ्यूचर्स पास मतलब ड्रेथ ब्रिंगर की तरफ होगा, जो उनके लिए बहुत मतलब आपको तकलीफ देने वालों के लिए बहुत दुखजनक उनकी सिचुएशन होगा। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। एस ऑफ वंस के साथ मुझे ऐसा लग रहा है, एस ऑफ वंस जनरली अगर आपको ये कहा देखे तो एस ऑफ वन से यहाँ पे, तो ये एस ऑफ वन जनरली हमें फायर एलिमेंट के बारे में बोलता है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है इस फायर एलिमेंट के साथ आपके फ्यूचर्स पास ना लिटरली मतलब ऐसा आपको सिक्योर करने के लिए, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए वो मतलब लिटरली कोई भी सिचुएशन हो, कुछ भी हो, मतलब वो मतलब सभी बुरी चीज़ों को या फिर सारी बुरी एनर्जी को जला के खा कर देंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। मतलब इतना प्रोटेक्टिव वाइब मुझे इस कार्ड से आ रहा है।
कि मतलब मेरे पास शब्द नहीं है उसको बयां करने के लिए। और यहाँ पे सडनली मुझे एक लाइन आ रहा है, एक ड्रामा से, मैंने एक ड्रामा देखी थी, वहाँ पे एक लाइन बोला था हीरो ने अपनी वाइफ के लिए, तो मुझे वो लाइन याद है कि मैं अपनी लाइफ में सब कुछ सहन कर सकता हूँ लेकिन तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं बर्दाश्त कर सका। तो मुझे एक ऐसा वाइब आ रहा है इस कार्ड से आपके लिए। तो यहाँ पे एक लिटरली ऐसा है कि आपके हबी और वाइफ ही आपको हमेशा खुश देखना चाहते हैं। और लास्टली हमारे पास है हर्मिट कार्ड। सो हर्मिट कार्ड के साथ आपके फीचर्स पास हमेशा आपकी सेफ्टी को लेके हमेशा कॉशियस रहेंगे। अगर आपको इस कार्ड में ये हर्मिट कार्ड आपको दिख रहा है तो इस हर्मिट के कार्ड में एक आपको एक मतलब आउल दिखाई देगा, तो पैर के ऊपर बैठा हुआ। तो मुझे ऐसा लग रहा है आपके फीचर्स पास ना कुछ व्यूअर्स के लिए आपके फीचर्स पास इंट्यूटिव पर्सन होंगे, और वो हमेशा ऐसे इंसान है जो अपनी गट फीलिंग को हमेशा ट्रस्ट करते हैं। और अगर आपको कोई भी चीज़ आपको बॉर्डर करे या फिर अगर कोई भी चीज़ आपको टेंशन दे रही है, वो आपको आपके हाव भाव में या फिर आपकी एनर्जी को आपके फीचर्स पास सेंस कर पाएंगे, और आपसे वो इस बारे में डायरेक्टली आपसे पूछेंगे कि आपको क्या तकलीफ है, या फिर क्या किस बात में आप मतलब आप टेंशन ले रहे हो, किस बात का आप टेंशन ले रहे हो, या फिर कौन सी ऐसी बात है जो आपको खटक रही है। तो यहाँ पे मैसेज ये है कि आप उनके साथ ट्रूथफुल रहिए ताकि वो आपको हेल्प कर सके, आपकी कोई भी सिचुएशन, अगर कोई भी बैड सिचुएशन हो तो आपको वहाँ से वो आपको निकाल सके। तो ये था। और साथ ही साथ हम मतलब मैं आप कुछ चार्म्स यहाँ पे हम देखने वाले हैं। तो ये चार्म्स शायद ऐसा हो सकता है फिर आपके फ्यूचर्स पास की तरफ से आपके लिए कोई मैसेज होगा, या फिर यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए कोई मैसेज है। तो आपके लिए इस ग्रुप के लिए हमारे पास है एलिफेंट है। तो आपके फ्यूचर्स पास एलिफेंट की तरह ब्रेव होंगे, करेजियस होंगे। जब आपको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी ना, तो आप हमेशा वो आपके प्रोटेक्ट करेंगे, आपको लव करेंगे, और मतलब एलिफेंट की तरह ब्रेव होंगे। और ये म्यूज़िक का सिंबल है। तो यहाँ फिर ऐसा लगेगा आपको, या फिर आपको म्यूज़िक सुनना बहुत पसंद है, या फिर आपके फीचर्स पास को म्यूज़िक सुनना बहुत पसंद होगा। और साथ ही साथ एक क्रॉस का सिंबल है। तो यहाँ पे आपके लिए जीसस क्राइस्ट का ब्लेसिंग आप पे हमेशा रहेगा और आपकी मैरिज पे, ताकि वो हमेशा आप दोनों खुश रहे और हमेशा उनकी ब्लेसिंग्स प्रोटेक्शन आप पे हमेशा रहेगा। तो ऐसे आपको पता ही है 25 दिसंबर आ रहा है, तो शायद ये कुछ लोगों के लिए जीसस क्राइस्ट की तरफ से ब्लेसिंग का सिंबल मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। और अगर आपको लास्टली गिटार का सिंबल दिखाई दे रहा है, गिटार दिखाई दे, तो ऐसा होता है आपको गिटार बजाना अच्छा लग रहा है, या फिर ऐसा हो सकता है जब आपकी शादी होगी तो आपके पर्सन को गिटार बजाना अच्छा लगता हो और वो आपको कोई भी म्यूज़िक बजा के सुनाए, ऐसा मुझे लग रहा है। तो ये था आज के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2। आज हम देखेंगे कि आपके फ्यूचर्स पास आपके लिए कितने प्रोटेक्टिव महसूस करते हैं। हमारे पास है 9 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, इंटीग्रेशन कार्ड, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स और 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड लास्टली द लवर्स कार्ड। सो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके फ्यूचर एज ए फ्यूचर्स पास आप एक बहुत रेस्पॉन्सिबल पर्सन को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो। और यहाँ पे जब आपकी सिक्योरिटी की बात आती है ना, तो वो मतलब जब आपकी जहाँ तक बात आपकी सिक्योरिटी की आती है, तो वो कोई भी रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है आपकी सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि यहाँ पे आप वो बहुत आपकी तरफ प्रोटेक्टिव महसूस कर रहे हैं, प्रोटेक्टिव फील कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। और उनके ना वो आपको उनके लिए आपके फ्यूचर्स पास के लिए आप उनकी नंबर 1 प्रायोरिटी हो, ऐसा मुझे लग रहा है। वो सबसे ऊपर उनके लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी आप ही हो उनके लिए। और यहाँ पे आपके फ्यूचर्स पास एक ऐसे इंसान है जिन्होंने अपने लाइफ, जब आपकी मैरिज होगी तब वो जो वोट लेंगे आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, जो वोट लेंगे ना, वो हमेशा उस वोट को वो फॉलो करेंगे, अपने दिल से वो मतलब वोट लेंगे, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। और यहाँ पे आपके लिए उनकी जो प्रोटेक्टिव फीलिंग है ना, वो कोई चेंज नहीं कर सकता, वो हमेशा आपके लिए प्रोटेक्टिव फील करेंगे, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। और 10 ऑफ कप्स के साथ 10 ऑफ कप जनरली हमें ग्रुप एक्टिविटीज़ के बारे में बताता है। तो यहाँ पे मुझे इस कार्ड से ये एनर्जी महसूस हो रहा है कि आपके फ्यूचर्स पास आप ये बिलीव करते हैं, आप दोनों टुगेदर, आप दोनों एक साथ बहुत एक स्ट्रॉन्ग, आप दोनों में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। और अगर आप दोनों एक साथ आ जाओ तो मतलब कोई भी आपको ब्रेक नहीं कर सकता, ऐसा मुझे वो लग रहा है इस कार्ड से। और उनके लिए आप उनके बेस्टी हो, और मतलब आप कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो, आप एक दूसरे के साथ हमेशा खड़े रहोगे, ऐसा मुझे लग रहा है। और आपके फ्यूचर्स पास भी बिलीव करते हैं कि अगर कोई भी मुसीबत उन पे आए या फिर आप पे आए, तो आप एक दूसरे का साथ हमेशा दोगे। और यहाँ पे आपके फ्यूचर्स पास ना मतलब एक ऐसे इंसान है जो हमेशा अपनी लाइफ में इमोशनल स्टेबिलिटी और डोमेस्टिक पीस अपनी लाइफ में चाहते हैं। और वो ये आपके पर्सन ये फील करते हैं कि यूनिवर्स ने आपको उनकी लाइफ में सेंड किया है, एज ए ब्लेसिंग आपको उनकी लाइफ में भेजा है, ताकि वो आपको प्रोटेक्ट और चेरिश कर सके। और अगर आप इन फीलिंग के बीच अगर कोई आपको मतलब हार्ट करने की आए, कोई आपको हार्ट करने के लिए चाहे, या फिर कोई ऐसा है कि कोई भी आपके साथ कोई गेम प्ले नहीं कर सकता, या फिर कोई आपको हार्ट नहीं कर सकता, और मतलब आपको कोई तकलीफ दे के अननोटिस्ड नहीं हो सकता, ऐसा उनका फीलिंग है।
और अगर आप उन्हें ऐसा, अगर आपको आपके पर्सन को अगर ये फील हो कि कोई आपको तकलीफ देने की कोशिश कर रहा है या फिर आपको हर्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो उनके पास वो उनके पास जितना भी रिसोर्सेस है ना, सारे अपनी ताकत यूज़ करेंगे ताकि वो आपको डिफेंड कर सके या फिर आपको प्रोटेक्ट कर सके। आपके पर्सन, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन फिजिकली और इमोशनली कैपेबल है आप दोनों को प्रोटेक्ट करने के लिए, और साथ ही साथ वो फाइनेंशियली भी इतने मजबूत है ताकि वो आपके फैमिली को या फिर आपको हमेशा गाइड और प्रोटेक्ट कर सके। इंट्यूशन के कार्ड के साथ मुझे यहाँ पे ये महसूस हो रहा है कि आपके, अगर जहाँ तक आपको मतलब प्रोटेक्ट करने की बात थी ना, तो मतलब आपके पर्सन ज़मीन आसमान एक कर देंगे, ऐसा मुझे इस वाइब से आ रहा है, इस कार्ड से ये वाइब आ रहा है। और यहाँ पे कुछ यहाँ पे मुझे ये पॉसिबिलिटी है कि कुछ व्यूअर्स ऐसा हो सकता है उनके मतलब यहाँ पे उनकी जोडाइक साइन ऐसा हो सकता है कि फायर साइन हो या फिर वाटर साइन, आप दोनों में से आपके भी हो सकते हैं या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस के भी हो सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। अगर आप इस कार्ड को देखो, यहाँ पे आपको एक ईगल का इमेज दिखाई देगा, तो मुझे ऐसा लग रहा है आप शायद ऐसा हो सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस के स्पिरिट एनिमल ईगल हो। तो अगर आपको ईगल के बारे में पता है तो अपने ईगल ना अपने प्रे को या फिर अपने शिकार को सरप्राइज़ करने में या फिर उनको डराने में माहिर है। तो ठीक उसी तरह आपके पर्सन अगर कोई भी अपने सडन एक्शन से किसी को भी सरप्राइज़ कर सकता है, और वो अपने मूव में ना वो बहुत फास्ट मूविंग पर्सन है आपके फ्यूचर्स पास। कोई भी एक्शन अगर वो लेते हैं ना वो बहुत फास्टली लेते हैं, ऐसा मुझे इस कार्ड से आ रहा है। आपको पता है अगर जैसे ईगल फियरलेस होता है ना, ठीक उसी तरह ही आपके पर्सन हमेशा फियरलेस रहेंगे ताकि आपको डिफेंड कर सके। और दूसरी, अगर हम ईगल की दूसरी क्वालिटी के बारे में बोले तो ईगल का जो विजन होता है वो फिर उनकी जो देखने की पावर होती है ना, वो उनमें बहुत स्ट्रॉन्ग पावर होती है। तो और वो अपने प्रे को या फिर अपने शिकार को बहुत दूर से ही देख सकते हैं या फिर उसको महसूस कर सकते हैं। ठीक उसी तरह अगर आपके पर्सन भी मतलब अगर आपको कोई मेंटल डिस्टर्बेंस होगा या फिर आपको कोई फियर आपको महसूस है या आपको महसूस होगा, अगर आप किसी बात को लेकर आप गुस्सा भी होंगे ना, आपके फ्यूचर्स पास वो सारे गुस्से को या फिर आपके फियर को वो महसूस कर पाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। और तभी वो मतलब अलर्ट रहेंगे ताकि वो अपने अदर हाफ को या फिर ये कहूँ कि ताकि वो आपको प्रोटेक्ट कर सके। और यहाँ पे इट्स लाइक ना आपके फीचर्स पास मतलब बहुत प्रोटेक्टिव है आपको लेके, क्योंकि इस ग्रुप में मुझे मतलब एनिमल स्पिरिट की वाइब्स बहुत आ रही है, स्पेशली इंट्यूशन कार्ड के साथ। अगर हम दूसरे एनिमल की बात करें, यहाँ पे दूसरे एनिमल स्पिरिट की बात करें, तो यहाँ पे आपको स्वान दिखाई देगा। तो यहाँ पे अगर आपको स्वान की क्वालिटी के बारे में पता है तो माना जाता है कि स्वान दूध और पानी में फ़र्क कर सकता है, एक ऐसा एनिमल है। ठीक उसी तरह आपके पर्सन अच्छे लोग और बुरे लोग जो आपके आसपास घूम रहे हैं ना, उनके बीच वो फ़र्क कर सकते हैं, ताकि उनके बीच वो फ़र्क कर सकता है। अगर कोई इंसान आपके आसपास मंडरा रहे हैं, मतलब ताकि आपके फ्रेंड हो गए या फिर कोई मतलब दिखाई दे रहा है कि देने की कोशिश कर रहा है कि वो बहुत अच्छे फ्रेंड है, लेकिन उनके दिल में कुछ और है या फिर वो निगेटिव वाइब अगर उनके मन में है, तो आपके फ्यूचर्स पास को वो मतलब आपके फ्यूचर्स पास को वो मतलब एनर्जी सेंस होगा, और तब कि वो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए मतलब ईगल की तरह या फिर स्वान की तरह हमेशा आएंगे। अगर आपको इस कार्ड में और एक एनिमल दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे आपको स्नैक दिखाई देगा। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जब आपकी प्रोटेक्शन की बात आएगी ना, तो आपके फ्यूचर्स पास बहुत कॉन्शियस होने वाले हैं और वो बहुत सीक्रेटिव होंगे। मतलब वो बहुत सीक्रेटली जो भी मतलब बिना आपको बताए या फिर आसपास को महसूस किए, ये बिना महसूस दिलाए जो भी प्रॉब्लम हो वो खुद में ही वो सोल्यूशन करेंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या हो रहा था उस वक्त। मतलब ऐसा बहुत सीक्रेटिव एनर्जी मुझे यहाँ पर महसूस हो रहा है। और जहाँ तक मतलब नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ जहाँ तक आपको उन्हें अपने अब मुझे यहाँ पे इस कार्ड के साथ या फिर कहूँ इस ग्रुप के साथ मुझे ये महसूस हो रहा है कि ना अगर आपके फ्यूचर्स पास अगर अपनी लाइफ में किसी से सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं ना, तो इंसान आप ही हो। और जब आपकी प्रोटेक्शन की बात आती है या फिर उनकी फ्यूचर फैमिली की प्रोटेक्शन की बात आती है ना, तो वो मतलब कोई भी एक्शन लेने के लिए हमेशा वो रेडी रहेंगे, और वो जो भी आपकी प्रोटेक्शन के लिए जो भी एक्शन लेंगे ना, वो बहुत जल्दी लेंगे, ताकि मतलब चुटकी में, ऐसे कहते हैं ना, चुटकी में कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। और यहाँ पे उन्होंने मतलब आपको प्यार करने के या फिर आपको प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने अपने दिल पे लेके रखी है, मुझे ऐसा महसूस रहा है इस कार्ड से। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ अगर हम बताएं तो आपके फ्यूचर्स पास एक ऐसे इंसान है ना, अगर कोई सिचुएशन उन्हें बॉर्डर कर रहा है, जब तक वो या फिर कोई सिचुएशन हो या फिर कोई इशू हो उनको बॉर्डर कराए, तो जब तक वो सिचुएशन या फिर इशू वो सॉल्व नहीं कर लेते तब तक वो चैन से नहीं बैठेंगे। कुछ ऐसे इंसान हैं। और जहाँ तक बात आपकी प्रोटेक्शन की आती है ना, तब भी वो ऐसे ही रहे, मुझे ऐसा लग रहा है। और अगर जब आपकी प्रोटेक्शन की बात आती है तो आपके सामने कोई भी इंसान होना, आपके फ्यूचर्स पास निडर होके मतलब बेफिक्र होके उस इंसान के अगेंस्ट जाएंगे, ताकि वो आपको प्रोटेक्ट कर सके। और आपके फ्यूचर्स पास के रहते इस दुनिया में किसी की मजाल नहीं है, ताकि वो आपको कोई बुरे इंसल्ट कर सके या फिर हार्ड वर्क आपको कोई मतलब गाली या फिर आपको कुछ ऐसा बोल सके ताकि वो आपको हार्ड महसूस हो, ऐसा मुझे लग रहा है।
और लास्टली हमारे पास है द लवर्स कार्ड। तो मतलब एक ट्रू लवर की तरह आपके पर्सन हमेशा आपको प्रोटेक्ट करेंगे और या फिर डिफेंड करेंगे, और ताकि वो हमेशा कोशिश करेंगे कि आप हमेशा सेफ़ फील कर सको। और अगर किसी ने उनकी फैमिली हैप्पीनेस को या फिर उनकी फैमिली की पीस को अगर किसी ने डिस्टर्ब करने की हिम्मत भी जुटाई ना, तो आपके फ्यूचर स्पाउस ये मतलब श्योर करेंगे ताकि वो दूसरे इंसान के दिन की वो बोलते हैं ना, दिन का सुख चैन और रात का नींद सब कुछ उड़ा देंगे, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। तो ये था कार्ड से। अब हम देखेंगे कि कुछ मतलब सिम्बल्स देखेंगे या फिर चार्म्स देखेंगे। शायद ऐसा हो सकता है कि ये चार्म्स आपके लिए मैसेज हो आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से या फिर यूनिवर्स की तरफ से ये मैसेज हो, मुझे ऐसा लग रहा है। तो हमारे पास है फर्स्ट चार्म हमारे पास है रोज़ का। तो ये शायद ऐसा हो सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस आपके मैरिज के बाद आपके फ्यूचर स्पाउस आपको बहुत सारा मतलब रोज़ गिफ्ट करे हमेशा, या फिर आप रोज़ के साथ आपको सरप्राइज़ करने की कोशिश करें, मुझे ऐसा लग रहा है। और दूसरा है हमारे पास आउल है। तो यहाँ फिर आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत मतलब इंट्यूटिव होने वाले हैं। अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम मतलब उन्हें कोई भी सिचुएशन उन्हें अपनी गट फीलिंग को ट्रस्ट करेंगे। अगर उन्हें ऐसा लगे, अपने दिल से ऐसा लगे कि कुछ आपको तकलीफ, कहीं पे आपको तकलीफ है या फिर कोई प्रॉब्लम आप फेस करें, तो आपके फ्यूचर स्पाउस वो सारी प्रॉब्लम को दूर करेंगे। और यहाँ पे मुझे केज से यहाँ पे ये महसूस हो रहा है कि कुछ मेरे व्यूअर्स के लिए अभी आप एक ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ पे आप ट्रैप फील कर रहे हो। तो यहाँ पे मैसेज ये है कि बहुत जल्द आपको इस फीलिंग से, आपके जो सिचुएशन में आप ट्रैप फील कर रहे हो उस सिचुएशन से आप बाहर निकल पाओगे। और कुछ मेरे व्यूअर्स के लिए मुझे ऐसा लग रहा है आपके फ्यूचर स्पाउस ना आपको, जैसे इस चिड़िया को अगर ये केज को ओपन करे तो चिड़िया बाहर निकल जाएगी, उसी तरह आपके फ्यूचर स्पाउस भी आपको आपके मैरिज के बाद आपको कोई ट्रैप्ड सिचुएशन से बाहर निकालेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। और लास्टली हमारे पास है ये लव सिंबल। तो आपके फ्यूचर स्पाउस आपके लिए लॉट्स ऑफ लव आपके लिए सेंड कर रहे हैं। तो ये था आज के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।